بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 96 اقساط سن چکے ہیں۔ آپ قسط 97 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے یکدم اپنی سسکیوں کو بریک لگا کر مجھ سے گھور کر کہا۔ وہ روحان سی اب بھی ہو رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تصحیح کرنی چاہی۔ تم سمجھدار ہو، ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے میں شکر ہوا کہ شکنتلا نے بھی کچھ کہا۔ ویسے بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا طیارہ کریش ہوا اور آج دوسرا دن ہے، مگر ابھی تک کسی ملکی اور غیر ملکی یا مقامی امدادی ٹیم نے ادھر کا رخ تک نہیں کیا۔ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہاں، سوچنے کی بات تو ہے، میں خود حیران اور پریشان ہوں۔ میں نے تائیدن کہا، تمہارا نام کیا اور تم کرتے کیا ہو؟ اچانک ہی شکنتلا نے موضوع سخن بدلا۔ میں نے ذرا یوں ہی دزدیدہ سی نظروں سے مالا کو دیکھا۔ وہ شکنتلا کو گھور رہی تھی، یوں جیسے کہہ رہی ہو کہ محترمہ کو ایسے حالات میں انٹرویو کی سوچ رہی ہے۔ میرا نام سیف ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ واو، فینٹاسٹک! شکنتلا چہکی۔ مالا سے اب رہا نہیں گیا، تڑ سے بولی، ایکسکیوز می، اس میں بھلا کیا فینٹیسی ہے؟ یہی کہ ہم تینوں میں ایک اداکارہ، ایک ڈاکٹر اور ایک ایئر ہوسٹس۔ شکنتلا اس کی بات کا برا منائے بغیر بولی۔ وہ واقعی زندہ دل ثابت ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس میں اس کی پیشہ ورانہ تربیت کا بھی دخل ہو، یا پھر اس کی فطرت ہی ایسی ہو۔ تیسری شے فینٹیسی ہو سکتی ہے۔ مالا منہ بنا کر بولی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چلو یہی صحیح، ہمیں حوصلہ، ہمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شکنتلا مسکرائی۔ مالا نے پھر برہمی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے ہونٹ بھینچنے لگی۔ شکنتلا نے بھی شاید بہت اس کا لحاظ کر لیا تھا، وہ بھی اسے تیکھے چتونوں سے کھورنے لگی۔ میں ڈر گیا کہیں ان دونوں رتنا کماریوں کے درمیان مہابھارت نہ چھڑ جائے۔ بیچ بچاؤ کی غرض سے بولا، ہم اس وقت سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ مالا چونکہ غلطی پر تھی، اس لیے میں نے سمجھانے کی ابتدا بھی اسی سے کی اور بولا، دیکھو مالا، تم بھی ذرا سوچ سمجھ کے کام لو۔ ہم اس وقت بڑے خوفناک اور غیر یقینی سے حالات کا شکار ہیں۔ ایسے میں ہمیں صبر اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں پہلے کبھی ایسے حالات سے نہیں گزری۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے ذرا سانس لے کر پھر کہا، میں تو بڑی ناز برداریوں میں رہی ہوں۔ کسی فلم میں بھی اگر ایسے ڈرامائی حالات ہدایت کار پیدا کرتا تھا تو بھی میں گھبرا جاتی تھی، اور اجے ورما سمیت تمام لوگ میرے آگے پیچھے پھر کر میرے دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے، تو تب کہیں جا کر میں اگلے شوٹ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتی۔ میں اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ شکنتلا نے زہریلے طنز سے کہا، محترمہ اداکارہ صاحبہ، یہاں کوئی شارٹ نہیں ہو رہا، سب حقیقت ہی میں ہو رہا ہے۔ باقی تمہاری ناز برداریوں اور موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اب ہدایت کار یا پروڈیوسر نہیں، صحرائی بھیڑی اور کتے ضرور آنے والے ہیں۔ تم کتیا، اپنی زبان سنبھال کر رکھو، تمہاری میری آگے اوقات ہی کیا ہے؟ مالا نے اپنا سارا غبار اس پر نکالا۔ شکنتلا اس کے گالی دینے پر بری طرح بپر گئی اور زخمی بلی کی طرح غراتی ہوئی اس پر چپٹی۔ تو نے مجھے کتیا کہا؟ تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ میں کمبل میں لپٹا بیٹھا تھا۔ شکنتلا کے تیور دیکھ کر یکدم گھبرا کر کمبل سمیت پیچھے کو سرکایا، کہیں مجھ پر ہی نہ چڑھ دوڑتی، اور ہوا بھی ایسا ہی، کیونکہ ان دونوں ناریوں کے بیچ میں ہی تھا۔ پھر شکنتلا کی ٹھوکر مجھے لگی تو میں ریت پر لڑک گیا۔ ادھر شکنتلا میرے لڑکنے کی پرواہ کیے بغیر مالا پر چڑھ دوڑی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گتھم گتھا ہو گئی۔ ایک ایسی جگہ پر جہاں ہم سب کی جان پر بنی ہوئی تھی، مجھے فری اسٹائل لیڈیز ریسلنگ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ایسے میں کم بخت دل کو لطف بھی آ رہا تھا، اور شل ہوتے دماغ کو سامان تسکین بھی میسر آ رہا تھا۔ مالا ایک نازک اندام اور دبلی پتلی لڑکی تھی، رنگت اس کی سانولی مگر شراب کی سی تل چھٹ لیے ہوئے تھی، اور وہ درمیانے قد و قامت کی مالک تھی۔ عمر کا اندازہ 22-23 سال سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا، جبکہ شکنتلا قدر دراز قامت، مقابلتاً صحت مند اور گوری رنگت کی ایک دبنگ سی خاتون تھی۔ عمر بھی اس کی 27-28 سے کم نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اب ہوا یوں کہ شکنتلا کو کچھ مغالطہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ فلموں میں کام کرنے والی ایک 20-22 سالہ نازک اندام اور ناز برداریاں برداشت کروانے والی لڑکی بھلا کیا مقابلے میں ٹھہر پائے گی۔ آپس کی بات ہے، میرا بھی مالا کے بارے میں پہلے یہی خیال تھا، اور ابتدا میں ایسا ہوتا بھی نظر آیا جب شکنتلا نے کسی صحرائی بلی کی طرح مالا پر جھپٹ لگائی اور اسے کمبل سمیت لیتی رتیلی زمین پر لوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ مجھے ان دونوں سے زیادہ کمبل کی فکر لاحق ہوگی، کہیں وہ اس دھما چوکڑی میں خراب اور پھٹ پھٹا نہ جائے، لہذا وہ میں نے خطرہ بھانپتے ہی ان سے کھینچ کر سنبھال لیا۔ اسی وقت صحرا کے رومان پرور چاندنی ماحول میں چٹاخ چٹاخ کی کڑہناک آوازیں ابھری۔ امر واقع یہی تھا کہ شکنتلا نے مالا کو رگیدتے ہی اس کے پھول سے چہرے پر تھپڑوں کی تابڑ توڑ بارش کر دی تھی۔
तभी मैंने पहली बार फैली हुई आंखों से एक और हैरत अंगेज मंजर देखा। माला को जाने कैसे मौका मिला और उसने रेत पर लेटे लेटे अपनी दोनों टांगों को जोड़कर अपने ऊपर झुकी शकुंतला के पेट पर जमाया और उसे खुद से ऊपर पीछे सर की जानिब उछाल दिया। वो एक कलाबाजी खाती रेत पर गिरी तो उसका शार्ट स्कर्ट जो पहले ही हवादिस से जमानत तले मस्का हुआ और फटा हुआ था वो ऊपर हो गया। शर्ट कोट की भी यही हालत हुई। गिरी तो उसकी चीख निकल गई। उस जलील कुतिया तो क्या समझती थी कि मैं सिर्फ मज़ाहिया फिल्मों ही में काम करती हूँ। इसमें एक्शन भी होता है जो मुझे पहले सिखाया गया है। अभी तुझे बताती हूँ। माला ने अपने बारे में शकुंतला को बड़े जोशो खरोश से आगाह किया और फिर उस पर चढ़ दौड़ी। मैंने ये लेडीज रेसलिंग जारी रहने थी कि इससे जरा खौफ की फिजा ही खत्म होती। ताहम सच्ची बात यह थी कि मेरी इस धुआंधार जंग में कूद पड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। माला को नीचे गिरी शकुंतला ने झपटने की नाकाम कोशिश चाही थी कि माला को एक और वार करने का मौका मिला। उसने शकुंतला पर छलांगते ही उसे बालों से पकड़ लिया और सर उसका इधर उधर मारने लगी। ये उसकी कोशिश हल्की साबित हुई क्योंकि इसी वक्त शकुंतला का भी पारा ठंड के बावसफ हाई हो चला था। यूं उसने संभाला लेने में चंदा देर नहीं लगाई और माला की गर्दन उसके दोनों हाथों में आ गई। एक चक्कर उसने भी दिया और दोनों ही चीखती गुर्राती रेत पर गिर पड़ी। उनके कपड़े तार तार होने के डर से मुझे इस महाभारत में कूदना ही पड़ा। कंबल मेरे ऊपर लदा हुआ था। मैं उसे खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाया था क्योंकि सर्दी बहुत थी। मैं कंबल समेत उन पर जा पड़ा। ये मेरी गलती थी। इन दोनों लड़ाका बिल्लियों ने अपना सारा उबाल मेरे गिर्द लिपटे हुए कंबल पर कुछ यूं निकाला कि उसे पकड़कर खींचा। कंबल मुझसे अलग हो गया। मैंने झट से अपने दोनों हाथ बाजुओं समेत अगरचे पेट और सीने पर इसलिए बांध लिए थे कि ठंड से बच सकूं। ताहम लगा ऐसा ही था जैसे मैं कोई औरत था और बरहनगी के डर से हाथ बांध लिए हों। उधर वो दोनों मेरे कंबल को भी अपनी कुश्ती में शमूलियत का एजाज दे चुकी थी और इसी खींचा तानी में कंबल की जैसे ही मैंने मखसूस चिचराहट की आवाज सुनी तो मेरे अंदर का ठिठरा हुआ मर्द जाग पड़ा और मैं इन दोनों पर जा पड़ा। सबसे पहले तो मैंने कंबल खींच कर दोनों को झटके देकर दूर दूर धक्का दिया। फिर इनके दरमियान आ गया और चिल्ला कर बोला, बंद करो ये लड़ाई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं है कि हम किन बुरे और बदतरीन हालात के शिकार हैं। मेरी बरहमी ने इन दोनों के होश ठिकाने लगा दिए। वो दोनों एक दूसरे से जरा फासले पर खड़ी हाँफने लगी। मैंने कंबल फिर अपने गिर्द लपेट लिया। चलो अपनी जगहों पर आकर बैठो और आइंदा ख्याल रखना। इसे समझा दो डॉक्टर साहब। शकुंतला माला की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली, प्लीज कॉल मी जस्ट सैफ। मैंने मुल्तजाना अंदाज में कहा, ओके। वो बोली, ये यहां नाज नखरे मत दिखाए, इसे भी समझा दो सैफ। माला भी तर्ज से शकुंतला को घूर कर बोली, आइंदा ये मेरे मुंह ना लगे, ख्वाह मैं नखरे करूं या यहां डांस करूं। बस अब बहस खत्म। इधर आ जाओ, सर्दी पड़ने लगी है। अपने कपड़ों का हशर तो देखो जरा। अगर फट गए तो क्या पहनूंगी? मैंने कहा। मेरी बात पर वो दोनों छींप सी गई थी। अब हम फिर पहले वाली पोजीशन में आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ा वक्त गुजरा। माला ने गोया फिर चुटकुला छोड़ा, उफ, काफी या चाय की तलब हो रही है। मेरा ख्याल है पास ही 2 कदम पर रेस्टोरेंट है। शकुंतला भी बाज नहीं आई। शट अप, मैं चिल्ला कर चलाया। वो दोनों डर के मारे चुप हो गई। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ती मरती रहीं और फालतू बहस में वक्त जाया हम करते रहे तो सहराई वीराने में इबरतनाक मौत हमारा मुकद्दर होगी। लेकिन हम क्या करें? माला बोली, कुछ तदबीर तो सोच सकते हैं। मैंने कहा, वो क्या? शकुंतला ने मेरी तरफ मुंह करके सवालिया निगाहों से देखा। कोई भी। मसलन ये कि हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये खजूरें खा कर हमारी आंतों का मुरब्बा बन जाएगा। तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करें? माला ने पूछा। हमें सुबह होते ही हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए, शायद कोई आबादी नजर आ जाए। मुझे तुम्हारी इस तदबीर से पूरा इत्तिफाक है, शकुंतला ने फौरन कहा। माला के पास भी कुछ चारा नहीं था। उसने भी साथ किया। हम सो गए। फुटते ही हम जागे तो हड़बड़ा कर उठे। इस तरह के माला और शकुंतला सोते में कंबल लपेटे मेरे साथ आने लगी थी। मैं बिदका तो वो दोनों भी भड़क कर उठ बैठी। फिर अगले ही लम्हे सामने नजर पड़ते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। यही नहीं, माला और शकुंतला की भी बेख्तियार चीखें निकल गई थी। हम तीनों की डरी सहमी सी नजरें सामने जमी रह गई थी। वो तादाद में 10-12 के करीब थे। बदन तवाना और स्याह खाकस्तरी से, कद के ग्रांडियल, ओहदे और पीले रंगों की खुली ढुली पोशाकों में मलबूस, सर पर गहरे सब्ज साफे बंधे हुए, बाल करली, आंखों से वहशतें टपकती हुई, कानों में पीतल के बाले झूल रहे थे। ये सब अच्छे कुमाश के नहीं नजर आ रहे थे। वो सब ऊंटों पर सवार थे। पहलू से उनके बंदूकें और नंगे लंबे फल वाले छुरे बंधे हुए थे। इन खौफनाक सूरतों वाले इंसानों का टोला देखकर
माला और शकुंतला हरासा हो गई और मेरे साथ चिमट कर इनकी तरफ जरा सहमत नजरों से देखने लगी। मुझे इनके नाजुक बदन खज़ा रसीदा पत्तों की तरह कपकपाते महसूस हो रहे थे, बल्कि हकीकत यही थी कि खुद मैं भी तशवीश सदा हो गया था। इन लोगों ने हमारे गिर्द घेरा डाल दिया था और ऊंटों से नीचे उतराए। इनमें एक ग्रांडिल शख्स भी था। इसका सर बिल्कुल गंजा था, माल सिवाय बालों के इस गुच्छे के जो उसने गुद्दी की जानिब से एक चुटिया निकाल कर पीछे छोड़ रखे थे। नीचे उसने घेरदार फूल वाली शलवार पहन रखी थी, जबकि ऊपरी बदन बरहना था। वो शायद सहरा के बदलते मौसम के आदी थे। इन सब की आंखों में गुरसना चमक थी। मेरे जहन में इन लोगों की वजाकता देखकर सबसे पहले यही खदशा उभरा था कि ये लोग सहराई लुटेरों के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। इन लोगों ने 7-8 मजीद अफराद को भी दबोच रखा था, जिनकी गर्दनों में बेल्ट नुमा जंजीरें डाल रखी थी, जिनके सिरे इनके हाथों में थे। इनमें एक खूबसूरत और हसीन और जमील जवान लड़की भी थी, जिसने जर्क बर्क लिबास पहन रखा था, मगर इसकी सुराहीदार गर्दन में भी आयनी कड़ा डालकर जंजीर मुंसलिक कर रखी गई थी और उसका सिरा इस ग्रांडिगल लुटेरे के हाथ में दबा हुआ था, जो मुझको का सरदार मालूम हो रहा था। वारे, आज तो बड़ा माल हाथ लग रहा है। अचानक सरदार टाइप आदमी ने हम तीनों को अपनी अंगारा आंखों से घूरते हुए मकरू लहजा में कहा। इसके मोटे मोटे बदहेत स्याह होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट रखसा थी। डाल दो इन्हें भी जंजीरें और ले चलो, उसी ने ताकमाना गुर्राहट के साथ अपने साथी लुटेरों से कहा। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। माला और शकुंतला की पहले ही इन खौफनाक सूरतों को देखकर हालत खराब हो रही थी। वो स्टरियाई अंदाज में चीखने चिल्लाने लगी। चंद लुटेरे हमारी तरफ लपके। मैंने मुजाहमत करनी चाहिए तो मुझे दबोच लिया गया, जबकि माला और शकुंतला मारे खौफ के गश खाकर इनके हाथों में झूल गईं। इन खबीसों ने उनकी गर्दनों में भी आईनी कड़े डाल दिए। मेरी गर्दन को भी इसी से नापा गया। इसके बाद सहराई लुटेरों का यह काफिला बदमस्त और शैतानी कह के लगातार अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। बहुत खतरनाक सूरत हालात थी। ये लोग सहराई लुटेरों से भी बढ़कर खतरनाक थे। इनका ताल्लुक बर्दा फरोशों के गिरोह से था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका आखिर हमें इस तरह यरगमाल बनाने का मकसद क्या था। क्या ये हमें फरोख्त करने का इरादा रखते थे? ये तो सदियों पहले का काला और मकरू धंधा था, जिसमें इंसानों को गुलाम बना लिया जाता था। इनका ठिकाना खासा दूर साबित हुआ। मुसलसल बगैर रुके निस्फ घंटे तक ऊंट दौड़ाते रहने के बाद ये लोग एक गुंजान आबादी वाले इलाके में दाखिल हुए। यह बड़ा पुररौनक इलाका मालूम होता था। मुझे हैरत हुई कि अगर ये बर्दा फरोश थे तो इनका आबादी से भला क्या ताल्लुक हो सकता था, क्योंकि मुझे तो अब तक यही अंदाजा हो सका था इनके बारे में कि इनका ठिकाना आबादी से भी कोसों दूर किसी सहराई वैराने में होगा। जब हमें एक बुलंदो बाला और वसी अरीज कला नुमा मजबूत शहतूतों की इमारत के देवहकल गेट के करीब लाया गया तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। गेट पर 4 मुसल्ला दरबान मौजूद थे। इन्हें देखकर दरबान ने फौरन गेट वाकर दिए। ये सब ऊंटों समेत अंदर दाखिल हो गए। एक वसी अहाता था। यहाँ रोशनी का भी बंदोबस्त किया गया था। ज्यादातर मशलें रोशन थी और कैरोसिन आयल के हंडोले रोशन थे। कले की अंदरूनी इमारत बहुत खूबसूरत और कदीम तर्ज तामीर का अछूता नमूना थी। इसका वस्ती दरवाजा भी बुलंद बाला और खूबसूरत महराबी तर्ज का था। बेशकीमत लकड़ी के इस भारी भरकम दरवाजे के दोनों चौबीपट बंद थे। ये लोग सब ऊंटों से उतरकर एक कतार में बाअदब खड़े हो गए। सरदार ने जिस हसीनो जमील और जर्क बर्क लिबास वाली दुशीजा के गले में आईनी कड़े के साथ जंजीर मुंसलिक करके उसका सिरा अपने हाथ में पकड़ रखा था, वो उस बेचारी को नहायत बेदर्दी के साथ घसीटता हुआ अपने साथी बर्दा फरोशों की कतार से चंद कदम आगे उस महराबी दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, जबकि हम उसके अकब में उसके साथी बर्दा फरोशों के साथ खड़े रह गए। कले के वस्ती दरवाजे के आस पास भी मुसल्ला मुहाफिज नजर आए। वो सब बावर्दी थे। इनके हाथों में कमदार तलवारें और कारतूसों वाली बंदूकें नजर आ रही थी। इनके चेहरों पर भी इन बर्दा फरोशों की तरह बड़ी बड़ी मूछें थीं। एक दरबान सरदार की तरफ बढ़ा। सरदार ने खरखराती आवाज में उससे कहा, महाराजा रत्ना सिंह से कहो कि तुम्हारा माल हाजिर है, हमें दाम दे दो। इसके बाद पर तलवार बदस्त दरबान ने बगौर पहले उस हसीन दुशीजा की तरफ देखा, फिर सरदार से बोला, इसकी जंजीर खोल दो। महाराजा को यह बात पसंद नहीं आएगी। मैं इसे ले जाकर उनके सामने पेश कर देता हूँ और दाम भी ले आता हूँ। सरदार ने ऐसा ही किया। उसने दुशीजा के गले से आईनी कड़ा खोल दिया। दरबान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे एक बात पर हैरत थी कि दुशीजा के चेहरे पर डर, खौफ या सरसहमगी के बजाय परेशानी के आसार तो नजर आते थे, लेकिन इसकी मोटी मोटी आंखों में नफरत की चिंगारियां भी फूटी पड़ रही थीं। आजाद होते ही उसने शोला बार लहजे में दरबान से कहा, तुम्हारे महाराजा रत्ना सिंह ने दलियार के महाराजा दिलबीर सिंह की बहू को अगवा करके बड़ी संगीन गलती की है, मगर कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भी फूलन बाई है
اور मत भूलो कि मैं एक गैरतमंद भाई हैबत सिंह की लाडली बहन भी हूं, जिसका डंका दलियार से गवालियार तक बजता है। इस नडर दुशीजा के लहजे में घन गरज में जाने क्या रोब था कि उसे अगवा करके लाने वाले बर्दाफरोशों के चेहरे पर इस लंबे चौड़े तारुफ ने ऐसी धाक बिठाई कि वो खाइफ सा नजर आने लगा। तहाँ वो चुप रहा। अलबत्ता दरबान ने तंजिया हंसी के साथ फूलनबाई नामी इस दुशीजा की तरफ देखकर कहा, हम जानत हैं अच्छी तरह से, हमारे महाराजा भी किसी से क्या कम है, गलती तुम्हारे भाई हैबत सिंह की थी। उसने महाराजा रत्ना सिंह से वादा खिलाफी क्यों की थी? चलो अंदर। यह कहकर उसने 2 मजीद दरबानों को भी इशारे से बुला लिया। फिर वो तीनों फूलनबाई को अंदर घसीट कर ले गए। थोड़ी देर बाद वही दरबान दोबारा नमूदार हुआ। इस बार उसके हमरा 2 दरबानों के हाथों में बड़ी बड़ी बख्शियां थमी हुई थी। वो दोनों उन्होंने सरदार की तरफ उछाल दी। इसके बाद वो लोग वापस पलट गए। काफी मुसाफत के बाद संगलास और बंजर पहाड़ी दामन में पहुंचे तो यहाँ मछलों और कैरोसिन आयल की रोशनी में गोया एक नई ही दुनिया आबाद नजर आई, जिसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं। यहाँ सहराई पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई थी, सरकंडों के झोंपड़े भी नजर आ रहे थे। एक बुलंदो बाला पहाड़ी में संगी हाल नुमा कमरा बनाया गया था, जिसके आगे लोहे की सलाखें इस्तादा की गई थी। ऐसे ही सलाखदार संगलास कैद खाने 2 और भी थे। ये 2 कैद खाने थे जो साथ साथ बने हुए थे, मगर अंदर से चट्टानी दीवार ने इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक में मर्द कैदी नजर आ रहे थे और जबकि दूसरी में जवान औरतों और लड़कियों को कैद किया गया था। मुझे तो मर्दों वाले कैद खाने बाइल्फाज दीगर जेल खाने में डाल दिया गया, जबकि माला और शकुंतला को औरतों वाले कैद खाने के अंदर धकेल दिया गया। मुझे जिस कैद खाने में डाला गया था वहां सख्त बदबू फैली हुई थी। कई कैदी मुझे नंग धड़ंग नजर आए, यूं जैसे एक ही हमाम में सब नंगे हों। फर्श पर घास फूस बिखरी हुई थी। इस मकदर और तंगो तारीख से इंतहाई नागवार माहौल में मेरा दिमाग फटने लगा। या 12-13 के करीब और भी कैदी थे। कुछ इधर उधर निडाल से पड़े हुए थे। चंद मुझे देखकर आंखें फाड़े तकने लगे। न जाने माला और शकुंतला का दूसरे कैद खाने में क्या हाल हो रहा होगा। मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त और अजीब लेकिन बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ से निजात क्यों कर मिल सकती है। यहाँ बर्दा फरोशों की बड़ी कसीर तादाद देखने में आती थी। कैदियों से बातों के दौरान बड़े लर्जा खेज इंकशाफात सुनने में आए। बकौल उनके बर्दा फरोशों के सरदार का नाम जकवान सिंह था। इसका काम यहाँ के राजों महाराजों को महंगे दामों गुलाम सप्लाई करना था। जरा जरा सी हुक्म अदूली पर सरदार जगवान सिंह, जिसे कैदियों ने जालिम सिंह का नाम दे रखा था, बड़ी अजियतनाक सजाएं देता था। मुझे ये सब अजीब लगा, यूं जैसे किस्से कहानियों का किरदार बन गया हूं मैं। क्या फरोख्त होने के बाद किसी गुलाम ने फरार होने की कोशिश नहीं की थी? एक कैदी ने मायूसाना लहजा में कहा। मगर भाग कर कहाँ जा सकता था? उसे फौरन धर लिया गया और जालिम सिंह के हवाले कर दिया गया। जालिम सिंह ने इन्हें 3 दिनों तक की थी। एक कैदी ने मायूसाना लहजे में कहा। मगर भाग कर कहाँ जा सकता था? उसे फौरन धर लिया गया और जालिम सिंह के हवाले कर दिया गया। जालिम सिंह ने उसे 3 दिन तक मुसलसल अजियत में रखा और फिर दोबारा उसे उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्हें उसने उसे बेच रखा था। फिर किसी में फरार होने की जुर्रत नहीं हो पाई। उसने मुझे ये भी बताया कि अक्सर इन लोगों से सख्त चट्टानें तोड़ने का मुशक्कत तलब काम भी लिया जाता था। और औरतों लड़कियों का ये क्या करते हैं? मैंने लरजते हुए दिल से पूछा। इन बेचारियों का तो हमसे भी ज्यादा बुरा हशर होता है। जरा सी गलती पर उस बदनसीब औरत को बरहना कर दिया जाता है और फिर इन्हें भी ऐश प्रस्त राजों महाराजों की बांदियां बना दिया जाता है। मैं ये सुनकर लर्ज उठा। क्या कानून के रखवालों को यह सब नहीं मालूम? कानून? एक दूसरा कैदी इस्तजाहिया लहजा में बोला। यहाँ सिर्फ इन्हीं राजों महाराजों का कानून चलता है और जालिम सिंह भी इन्हीं लोगों की पैदावार है। मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गया था। मुझे अब माला और शकुंतला की फिक्र हुई और खदशा हुआ कि कहीं वो दोनों बदहवासी में कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे। अगर वो यहाँ होती तो मैं इन्हें समझा बुझा कर रखने की कोशिश करता।